What you can do, you can just read it out, and if you find any difficulty, then you can ask me. Okay, Okay. sir. Yes. Okay. So now we will study balance of payment. I think Okay. these students are, if they come, then we will think. But so far, what we can do, we can just start balance of payment. Okay. On then we will finish as soon ASAP. Then we will start our past paper because we should have sufficient time for the past paper as well. Okay. So this is chapter number 4. Then we will be doing chapter number 5. We will try to finish Okay, it sir. today, inshallah. Okay, the balance of Okay. payment. The balance of payment actually this is the country's uh, balance of payment actually the country's record of all the economic transaction between resident of that country with the rest of the world. Okay, with the rest of the world. Okay, with the resident of other countries or rest of the world. Is it clear or not? Actually, No, sir. Can you please repeat? actually the balance of payment means the record of all the economic transaction of all of the transaction with that country with the other countries, or you can say with the rest of the world, or you can say the between the resident of that country and the resident of the other countries. Is it clear? This is balance Okay, of. sir. Yes. This means that economic transaction you have with this country, resident of this country, what they do with the other countries. Maybe one country, two country, three country, or maybe 100 countries, whatever. But this is your country and the other countries. Economic transaction are called balance of payment. Okay, and it is the you see, this is you already studied. This is regarding the inflation and deflation. Okay, now current account. Aja, this is standard presentation of the balance of payment account that is recommended by the International Monetary Fund. Okay, this is standard presentation of the balance of payment account. What we have discussed it. Is it clear or not? If you have any question, please let me know. Sir, I didn't get this point, like recommended by International Monetary Fund. Actually, what they are talking about is definition. A country's Okay. balance of payment is a record of all economic transactions between resident of this country and the resident in other countries. Whatever economic transaction you have with your country, with the other residents of the countries, other countries, that is called balance of payment. And this is there is a standard presentation of the balance of payment account that is recommended by the there is certain standard is there presentation how you show it. Yeah, it will be shown later on in this chapter. Okay. Okay. अच्छा उसमें क्या चीजें होती है नंबर वन इट कंसिस्ट ऑफ करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट एंड नेट एरर फॉर्मेशन uh, these are the items should be included in the balance of payment. जब हम आगे पढ़ेंगे ना इट विल बी क्लियर डोंट वरी. लेकिन हमें सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा हमारे पास करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है और फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है. ठीक है. अच्छा उसके बाद एरर कुछ एरर ओमिशन भी होते हैं. वो क्या होते हैं, बैलेंसिंग आइटम होते हैं. ये हम पढ़ेंगे. वो क्या होता है, वो बेसिकली ये होता है कुछ चीजें हमें ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड नहीं हो पाती. फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझें कि मिसाल के तौर पर हमने जो है ना बहुत ही काम जो कि आपके रिकॉर्ड में नहीं थे. मिसाल के तौर पर आपने ट्यूशन पढ़ी और पैसे दे दिए और बंदे लेने वाले का भी कैश में ले लिया और कैश में दे दिया. तो इससे होता क्या है कि वो पूरी कंट्री की पेमेंट में नहीं आता. इसीलिए आपने अगर मिसाल के तौर पर किसी को पैसे भेजने हैं अपने बैंक के थ्रू नहीं भेजिए और आपने क्या किया बाय हैंड ले गए. ठीक है, तो वो इसलिए मना करते हो. आपको पता होगा अगर आपने मुल्क से बाहर ट्रेवल किया होगा तो एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप मुल्क से बाहर ले आ नहीं सकते. ठीक है ना, करेंसी लेके आ सकते हैं. तो वो आपको थ्रो यू हैव टू सेंड इट थ्रू योर बैंक. ये पता है आपको बात ना. इस क्राइम इफ यू होती है. it's a crime if you're taking more cash. Okay. Yes, sir. अच्छा इसकी और भी वजूहत होती हैं. दिस इज नॉट द ओनली रीजन. उसकी दूसरी वजह भी होती है कैश असल में होता है ना तो उसका रिकॉर्ड नहीं आता. दूसरा ये तो हो सकता है ब्लैक मनी हो
हो सकता है कुछ और हो, Yes, sir. ठीक है ना, तो वो कोई किसी इलीगल ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो रही हो, तो इस वजह से जो है ना वो दिस नॉट अलाउड टू ब्रिंग मोर मनी, ठीक है। ये देखें, अच्छा अब एक और देखें, मनी कमिंग इन द कंट्री क्रिएट क्रेडिट आइटम। याद रखिए मुल्क में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जब आपके मुल्क में जब पैसा आएगा ना, उससे क्रेडिट आइटम बढ़ेगा। आपको पता प्रॉफिट जो है ना क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अच्छा विच हैज अ पॉजिटिव साइन, जो क्रेडिट साइड पे होगा पॉजिटिव साइन होगा। अच्छा मनी गोइंग आउट ऑफ द कंट्री गिव राइज टू द डेबिट आइटम, ठीक है, और इट हैज अ नेगेटिव साइन। यहाँ तक समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? Yes, sir. Clear. हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर आप जो लेके जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मुल्क में पैसा आ रहा है आपका तो वो होगा वो क्रेडिट आइटम पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। एक और दूसरा वो पॉजिटिव साइन होगा। इसका मतलब होगा जब क्रेडिट आइटम में होगा तो पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक मसला? Clear, sir. चलो ग्रेट। अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर ईयर। देखिए ये डेफिनेशन आ गई है वाली। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ये हो ना कि अलग कंट्रीज का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक अब ये और क्लियर हो गई आपको डेफिनेशन, द रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक Yes, sir. ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा अब हम अगर हम अच्छा अच्छा ये भी आ गया। चलो अस्सलाम वालेकुम वलीद। वलीद हमने ये स्टार्ट किया है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। हमने स्टार्ट किया बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है हमने देखा कि जब तक मुख्तलिफ ये IMF की रिक्वायरमेंट है कि वो उसको इस तरह शो करना है। कैसे शो करना है? वी हैव टू शो इट इन द करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से ये वाले होते हैं। करंट अकाउंट, जैसे करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट में आपका होगा द ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस। ट्रेड इन गुड्स का मतलब हुआ जो फिजिकल गुड्स का जो बाइंग एंड सेलिंग जो होती है हमारी, ठीक है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फिजिकल गुड्स का जो होता है, ठीक है। और क्योंकि जब भी देखें हम किसी दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं तो उसको अगर हम सेल कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट कहलाता है, जब हम परचेस कर रहे हैं तो इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बात तो आपको पहले से पता होगी, ठीक है। अच्छा सर्विस का जी मतलब, सर। ठीक है। और सर्विस में क्या होता है, अगर ट्रेड सर्विस में कर रहे हैं तो क्या होता है वो आपका वो ट्रेड इन सर्विस, ये भी इसका पार्ट ऑफ द सर्विस। सर्विस का मतलब ये होता है कि फिजिकल गुड नहीं है, हमने कुछ सर्विस प्रोवाइड की। फॉर एग्जांपल अगर हम PIA के अलावा अगर हम एमिरेट्स को यूज कर रहे हैं तो अगर हमारा एमिरेट्स को यूज करने का मतलब ये हो कि हमने एमिरेट की सर्विस को इंपोर्ट किया है, ठीक है। अगर कोई दुबई का बंदा हमारा अगर PIA यूज सफर कर रहा है तो बेसिकली वी आर एक्सपोर्टिंग एयर ट्रेवल सर्विस टू UAE, ठीक है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस तरह होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तानी बैंक कोई हमारा सर्विस यूज कर रहा है तो अगर कोई और दूसरी कंट्री का मतलब है हम बैंकिंग सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम किसी और बैंक को यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के अलावा, तो बेसिकली वी आर इंपोर्टिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस फ्रॉम अदर कंट्री। मेरा ख्याल है ये बहुत क्लियर होगा आपका, ठीक है। सर्विस और गुड्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस दूसरा आ गया। तीसरा एक टर्म यूज होती है इनकम, जो समझ में आए प्लीज पूछ लीजिएगा। एक और टर्म यूज होती है इनकम, ठीक है। इनकम क्या होती है? इनकम को लेते जैसे देखें, इनकम होती है प्रॉफिट होता है, ठीक है। अच्छा ये जो यानी कि हमने प्रॉफिट किया है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड अर्न्ड ऑन इनडायरेक्ट, अच्छा ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन अर्निंग इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी दूसरे मुल्क के अगर हम शेयर परचेज किए हुए हैं
या किसी दूसरे मुल्क में अगर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका प्रॉफिट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, वो सारा का सारा क्या होगा, इनकम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड पेड ऑन फॉरेन शेयर्स बाय रेजिडेंट इन द कंट्रीज अपीयर एज क्रेडिट आइटम, ये याद रखिए, अगर हम पे तो क्रेडिट आइटम होता है। वाइल इंटरेस्ट पेड टू फॉरेनर्स ऑन बैंक अकाउंट दे होल्ड इन द कंट्री आर डेबिट आइटम। क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास आएगा, वलीद इस बार याद रखिएगा, जो भी हमारे पास पैसा आएगा ना, इसको अगर आपके पास कहीं तो हाईलाइट नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा। याद रखिएगा, अगर आपके पास मनी कमिंग इनटू द कंट्री, वो क्या होता है, क्रेडिट आइटम होता है, ठीक है ना, और पॉजिटिव साइन होता है, दो बातें हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर मनी गोइंग आउट ऑफ द कंट्री गिव राइज टू द डेबिट आइटम, ठीक है, वो डेबिट होगा, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास अगर हमने देखा, मतलब फॉर एग्जांपल डिविडेंड पेड ऑन फॉरेन शेयर का मतलब हुआ कि अगर हमने बाय रेजिडेंट इन द कंट्री, क्योंकि हमारे पास जो ना कीजिए, हमने किसी दूसरे मुल्क के शेयर परचेज किए हैं और हमें डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, बाय रेजिडेंट इन द कंट्री, क्रेडिट आइटम पे आएगा। समझ में आ रहा है क्यों क्रेडिट आइटम में क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास हमें ये डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा, लेकिन इंटरेस्ट पेड टू फॉरेनर ऑन बैंक अकाउंट, ठीक है, अगर फॉरेन अकाउंट में अगर हमने जो है ना वो पैसा रखा हुआ है, और हमें जो फॉरेन ऑन बैंक अकाउंट दे होल्ड इन द कंट्री। अच्छा, अगर किसी दूसरे ने, कंट्री वालों ने हमारे बैंक में अगर पैसा रखा हुआ है और अब उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने पेमेंट आउट हो रही है तो हमारा डेबिट आइटम हो जाएगा, और डेबिट आइटम का मतलब नेगेटिव आइटम है। यहाँ तक मेरी बात समझिए, दोबारा बताऊं। सर प्लीज दोबारा रिपीट कर देंगे, ये नहीं अच्छा, समझ में आया। अच्छा ठीक है, देखें इनकम, देखें आपको एक बात तो ध्यान में तो पता है ना आपको, अगर हमारे बैंक में पैसा आएगा तो वो पॉजिटिव साइन होगा और वो क्रेडिट आइटम होगा, ये बात तो क्लियर है, उसके बाद समझ में आएगी बाकी बात। यस सर। अच्छा, यस सर। इसी तरह हम किसी और को अगर पे कर रहे हैं तो वो हमारा वो नेगेटिव होगा और हमारे पास वो डेबिट आइटम में आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखें, ओके। डिविडेंड पेड ऑन फॉरेन शेयर का मतलब क्या हुआ, अगर हमने किसी दूसरे कंट्री के शेयर लिए हैं, ठीक है, तो अगर हमने शेयर लिए हुए तो हमें ओके इंटरेस्ट, हमें डिविडेंड यानी प्रॉफिट में मिलेगा या हम पे करेंगे, अगर हमने शेयर लिया। सर पे करेंगे नहीं, शेयर अगर हमने, हमने शेयर लिया हुआ है। जी लिखे ना, ये सर तो लिखा है, फिर तो हमें मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, देखिए ना, और ये है फॉरेन शेयर का मतलब दूसरी कंपनी कहते हैं, रेजिडेंट इन द कंट्री। अब देखिए क्रेडिट आइटम लिखा, समझ में आ गया आपका, क्रेडिट आइटम क्यों होगा, क्योंकि हमें मिल यस रहा है, सर। और ये पॉजिटिव होता है, ओके। ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट पे टू यस। फॉरेन ऑन, अच्छा, अगर 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 आप फॉरेनर्स को पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, फॉरेनर्स को पे कर रहे हैं, और किसको पे कर रहे हैं, बैंक अकाउंट दे होल्ड इन द कंट्री, हमारी कंट्री में किसी बैंक में किसी ने पैसा कर रखे हैं और उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है, इसका मतलब पैसा जा रहा है ना, पैसा जा रहा है तो नेगेटिव होगा और यस। डेबिट आइटम होगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके यस। ये है बेसिकली, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर आई है, एक है करंट अकाउंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर क्या होता है, याद रखिए जब भी ट्रांसफर का जिक्र आएगा ना, ट्रांसफर का मतलब होता है कि ये उन लोगों ने अर्न नहीं किया जिनको ये रिसीव हो रहा है। जैसे these cover payment made and receive from the, अच्छा, no corresponding, sorry, exchange of natural goods or services, they include government transfer। देखें, जब ये इसमें क्या क्या चीज आती है, जिसने एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एक्चुअल गुड्स और ट्रांसफर, मतलब हमने फिजिकली गुड्स एक्सचेंज ट्रांसफर नहीं किए हैं, ठीक है। नो कॉरस्पॉन्डिंग, इसमें कोई हमने परचेस, कोई सेलिंग परचेस कुछ भी नहीं की हुई है, लेकिन हमें मिल रहा है। जब भी ट्रांसफर का जिक्र आता है, बेसिकली इट इज नॉट एक्चुअल, सिंपली ट्रांसफर। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है आपके पास ट्रांसफर दैट इज पेमेंट टू एंड रिसीव फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे मिसाल के, हमें अगर एड वगैरह मिलती है, वो इसके अंदर आएगी, जैसे फॉरेन एड आ गया, फॉरेन एड इसके अंदर आ गया, या हमें ये हो गया। उसके बाद ट्रांसफर बाय प्राइवेट इंडिविजुअल इंक्लूड दिस। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर किसी लोगों ने प्राइवेट इंडिविजुअल में ट्रांसफर किया, ठीक है, पार्ट ऑफ करंट अकाउंट,
सच ट्रांसफर इज वर्कर्स रेमिटेंस। क्या मतलब है? जो वर्कर्स जो हमारे मुल्क से बाहर लोग काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने हमें भेजा है, रेमिटेंस का मतलब पता है क्या होता है? पैसा भेजना, पता है ना ये? अच्छा, तो अगर ट्रांसफर वर्कर्स रेमिटेंस, अगर मिसाल के तौर पर दूसरे मुल्कों से पैसा वापस आ रहा है तो वो ट्रांसफर के अंदर आएगा। इसी तरह अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई लोग, जैसे दूसरे मुल्क के लोग हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम वो वापस भेज रहे हैं, तो वो क्या आएगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? सर वो हमारे कंट्री से अगर भेज रहे हैं, जी, so that would be debit items. वेरी गुड। डेबिट और नेगेटिव, बिल्कुल। डेबिट और नेगेटिव Yes. एक ही चीज, ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, द ट्रांसफर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द ट्रांसफर मनी फ्रॉम पीपल वर्किंग इन ए फॉरेन कंट्री बैक टू देयर रिलेटिव एट होम फॉर्म्स अ लार्ज क्रेडिट आइटम इन द केस ऑफ सम कंट्रीज। ठीक है, फिलीपीन में ये बेसिकली किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है जैसे अगर अगर फिलीपीन के लोग अगर हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो फिर वो क्रेडिट आइटम नहीं होगा, डेबिट आइटम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्रेडिट आइटम किसके लिए? क्रेडिट उसके लिए, जैसे मैं पाकिस्तान के लोग दूसरी जो मुल्क में अगर काम कर रहे हैं और वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, तो वो क्रेडिट आइटम हो। जैसे आप बिल्कुल सही कहा आपने। डेबिट आइटम कब होगा? जब हमारे मुल्क में अगर फिलीपीन लोग हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और वो अपने मुल्क में भेजें, तो उनके लिए तो अपने अपनी कंट्री क्रेडिट होगा, लेकिन हमारे लिए डेबिट होगा, क्योंकि हमारे मुल्क से पैसा जा रहा है। यह बहुत कैटेगोरिकली बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। अगर मुल्क से पैसा जाएगा तो वो नेगेटिव होगा और वो डेबिट आइटम होगा। ठीक है ना? उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये है, अभी कंफ्यूजन तो नहीं है ना? No, sir, clear. वेरी गुड। अच्छा, ओके। अच्छा जी, ठीक है, तो ये हो गया, इनकम हो गया, कंट्री हो गई, उसके बाद यहाँ तक हो गया, ठीक है ना? कंट्री बैक टू देयर रिलेटिव एट होम, दिस क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, शाबाश। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे ये देखें, परसेंटेज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये तो खैर वाले वो जो इन्फ्लेशन ताल्लुक है उसका, ठीक है ना? इसको डेफिनेटली आपने पढ़ लिया होगा ये, ठीक है? इन्फ्लेशन वेनेजुएला में कितना ज्यादा है, ठीक है ना? और देखिए मैक्सिको के अंदर। अच्छा, मुझे बताइए कहाँ पे खतरनाक है? ऐसे आपसे पूछ रहा हूँ। सर इन्फ्लेशन का रेट जिसमें सबसे ज्यादा हाई होगा, जो तो ये वो है ईयर 2013 जी, नहीं नहीं नहीं, में। मैं पूछे ये इसमें इसमें कौन सा जो 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 इन्फ्लेशन रेट जो है ना, वो नॉर्मल है, आप समझती हैं, और अच्छा है, बेहतर है, और कौन सा डेंजरस है, डेंजरस की तरफ जा रहा है, उस मुल्क के लिए बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है? सर 36.0। हाँ बिल्कुल सही है, ये सारे डेंजरस है ना साले, ये बहुत ज्यादा 10 से ऊपर तो सारे खतरनाक यस होते हैं। ठीक है, और ये वाले जो है ना, ये बाकी जो है ये ना, ये इस ओके, ये भी मतलब थोड़े से हैं, लेकिन ये दिस इज मैक्सिको में इज फाइन। थ्री थ्री देखें ना, अच्छा, ये एक और सवाल आपसे पूछता हूँ। देखिए 7 8 9 10 चल रहा है ना, अब ये यहाँ से आप बताएं कि यहाँ से ये 5 के बाद ये क्या है? सर ये तो डिक्रीज हुआ है। अब तो इंक्रीज यानी कि डिक्रीज हुआ है, मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो इन्फ्लेशन जो है वो ये डिफ्लेशन है या डिसइन्फ्लेशन है? सर डिसइन्फ्लेशन। अच्छा, डिसइन्फ्लेशन। अच्छा ठीक है, बिल्कुल शाबाश, डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन तो यहाँ कहीं नजर आ ही नहीं रहा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नेगेटिव साइन कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि 5% था पहले, उसके बाद 2010 में इन यस। प्राइस तो बढ़ी है, लेकिन वो 3.5 बढ़ी है, 3.9 बढ़ी है। बोलिए, आपके समझ में आ रही बात है ना? ये कहलाता है डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, वेरी गुड, चलेंगे, ये तो क्लियर हो गया आपके। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अब हम डिटेल से पढ़ेंगे वन बाय वन। अब करंट अकाउंट हमने पढ़ लिया अच्छी तरह,
ठीक है। करंट अकाउंट में कितने आइटम होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके उसके अंदर जो ना, वो आपके बाद ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस, उसके अलावा इनकम्स होती हैं। इनकम कौन कौन सी होती हैं आपकी, जो इंटरेस्ट की या फिर आपकी उसकी जो आपके डिविडेंड वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये करंट ट्रांसफर क्या होते हैं, जो आपको ट्रांसफर होते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेज देते हैं। जैसे वो अगर हमें फॉरेन एड मिल रही है, या मतलब इसमें कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं होगी, किसी ने हमारे मुल्क में पैसा भेज दिया, हमने किसी मुल्क जहाँ से किसी लोगों ने किसी और जगह भेज दिया। ये बात क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? तो ये बेसिकली ट्रांसफर में याद No, रखिएगा। sir, ये point clear है। वेरी गुड। तो ये करंट अकाउंट कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। करंट अकाउंट, एक और अकाउंट हमारा कौन सा है, वो कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट, अच्छा, ये सबसे ज्यादा जो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं और सबसे ज्यादा डिटेल होती है, बेसिकली करंट अकाउंट में ही होती है। ये आपको क्लियर होगा ना, बाकी चीजें इतनी इज नॉट डिफिकल्ट, इज वेरी सिंपल एंड इजी है वो। देखिए मिसाल के तौर पर कैपिटल अकाउंट है, एज अ कंट्री द कैपिटल अकाउंट इज रिलेटिवली स्मॉल पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंक्लूड इंस्टेड गवर्नमेंट डेट ऑफ फॉरगिवनेस, मनी bought into and taken out of the country by migrant। ये बिल्कुल कैपिटल अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट, नॉर्मली तो ये इंक्लूड ही नहीं हो रहा, फाइनेंशियल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसके अंदर ना, अगर हमने कोई गवर्नमेंट का, हमने जो है ना, अगर जो कर्जा माफ कर दिया, वो होता है। यानी अच्छा, उसके अलावा ये होता है माइग्रेंट अगर लेकर आ रहे हैं, माइग्रेंट का मतलब अगर कोई, जैसे आपको पता है कि कनाडा के इमिग्रेशन या यूपी के बाद इमिग्रेशन देते हैं, वो कहते हैं पैसा लेकर आप इतना लेकर आते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको हम इमिग्रेशन दे देंगे। उस टाइप की चीज इसके अंदर आती है, ठीक है। और क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. अच्छा, कनेक्शन अनस्टेबल लग रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे अच्छा, करंट अकाउंट में समझ में आया या नहीं आया? ये बहुत छोटा सा आइटम होता है। इसमें क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें क्या होता है, आपकी गवर्नमेंट की जो, अगर आपने डेट माफ कर दिया आपने, या आपने मनी इनटू एंड इनटू एंड टेकन आउट ऑफ द कंट्री बाय माइग्रेंट, जो जो दूसरे कंट्री में जा रहा है। अगर कोई हमारे मुल्क में आ रहा है और हमें इमिग्रेशन दे रहे हैं, पैसा लेकर आ रहा है, तो वो हमारा हमारा पॉजिटिव आइटम होगा, ठीक है ना, वरना नेगेटिव होगा। उसके अलावा एक और चीज होती है, परचेज ऑफ कॉपीराइट। हमने कॉपीराइट समझते हैं, पैटेंट एंड ट्रेडमार्क, ये भी इसके अंदर आता है। कॉपीराइट समझते हैं? कॉपीराइट का मतलब होता है जिसमें आप रिप्रेजेंट कर सकें, लिख सकें। पैटर्न का मतलब जैसे जैसे कोई दवाई है या कोई जैसे पैटर्न आपने परचेज कर लिया और आप उसको वो उसको आप जो वो प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। ट्रेडमार्क भी ये होता है, किसी का नाम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये किसी सारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंट में क्या क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंट में बहुत सिंपल चीज है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने फैक्ट्री कोई खोली है, कुछ और किया। आप लोग समझ में आ रही है बात? ये आप लोग बिल्कुल मेरे साथ ही है ना? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। Yes, अच्छा, sir. जी सर। वेरी गुड। अच्छा, अब आप समझिए डायरेक्ट इन्वेस्ट, अब इसको थोड़ा सा ना समझना ही पड़ेगा कि फाइनेंशियल अकाउंट और करंट अकाउंट का जो है ना, थोड़ा सा रिलेशन इसका क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर, दिस कवर द बिल्डिंग एंड फैक्ट्री अनदर कंट्री एंड टेक ओवर एग्जिस्टिंग फर्म इन द कंट्री, डेबिट आइटम। अच्छा, अब इस बात को समझे आप, अगर आपने जो है किसी दूसरे मुल्क में, अगर आपने जैसे पाकिस्तान में अगर दुबई के अंदर किसी ने अगर वो खोली है, अगर फैक्ट्री खोली है, तो जाहिर है हम फैक्ट्री लेंगे या फिर कंट्री का फिर टेक और फर्म को अपने परचेज के लिए पैसा हमारे यहाँ से मुल्क से जा रहा है ना, तो वो डेबिट आइटम होगा, जैसे मैंने कहा था नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, और सेटिंग अ न्यू प्लान टेक ओवर इन द फर्म फॉरन, ठीक है। और सेटिंग अप ऑफ ए न्यू प्लांट और टेक ओवर फर्म इन द कंट्री बाय अ फॉरेन फर्म, अगर कोई दूसरे मुल्क से अगर कोई हमारे मुल्क में लाके लेके आए तो वो क्रेडिट आइटम हो जाएगा। ये बात किसके समझ में आई, किसके नहीं आई, मुझे बता सकता कोई? ये क्या बातें हो रही हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का? बहुत सिंपल, बहुत आसान सी चीज है। Sir, can you give me a minute? I want to read it. हाँ प्लीज।
Sir, they're talking about कि अगर one company has taken over another firm in another country, so that would be debit items, or they have set like they have set a new industry or a new firm, and if they have done that by a foreign firm, so that would be a credit item. बस सिंपल इसको इससे समझे ना कि आपके पास अगर कोई देखे ना, अगर मैं समझ नेस्ले वाले ने यहाँ पे प्लांट लगाया, फैक्ट्री परचेज कर ली, वो पैसा लेकर आ रहा है ना, सही है ना? तो इसका मतलब है हमारा वो क्रेडिट आइटम हो जाएगा। जैसे जैसे सेटिंग अप अ न्यू प्लांट और टेकिंग ओवर फ्रॉम Okay. इन द कंट्री बाय ए फॉरेन फर्म, ठीक है? और अगर पाकिस्तान ने जो है अगर किसी दूसरी जगह करे तो वो क्या हो जाएगा, पैसा कहीं जा रहा है तो इसे डेबिट आइटम हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, टेक और एग्जिस्टिंग फर्म इन अनदर कंट्री। सिंपल है नहीं है ये Okay, sir, got it. बिल्कुल अच्छा। लेकिन अब आप इस बात को समझेंगे, अगर हमने इसको आप पूरा समझ लीजिए, यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास डेबिट आइटम हो गया, इसका मतलब है हमने सपोज करें कि हमने किसी अनदर कंट्री के अंदर टेक ओवर कर लिया, हम वहां चले गए, पैसा लेके जाएंगे ना हम लोग, पैसा लेके जाके हमने फैक्ट्री वहां पे खोल ली, ठीक है? अब मैं आपसे पूरा बता के मैं सवाल करूंगा आपसे, ठीक है? आप पैसा चला गया हमारा, वहां पे हमने जाके फैक्ट्री खोली सब कुछ। अच्छा, उसका जो प्रॉफिट हमारे वापस भेजेंगे हम, वो क्या होगा? वो डेबिट आइटम होगा, क्रेडिट आइटम होगा? सर, डेबिट आइटम होगा अगर आपके कंट्री से जा रहा है तो। नहीं नहीं, मेरी मेरी पूरी बात सुनो, देखिए ना, हमने मैं सपोज करें हमने जो है शान मसाले वालों ने जो है वो अपना दुबई के अंदर एक फैक्ट्री खोल ली, पैसा लेके जाएंगे ना यहाँ से, तो वो डेबिट Yes, आइटम है, sir. डेबिट आइटम है, ठीक है? लेकिन जब Uh-huh. वो फैक्ट्री खोलने के बाद वो काम Okay. करेंगे, उसको कुछ प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना? वो प्रॉफिट Yes, जो sir. Credit item. वेरी गुड, शाबाश। और वो फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं आएगा, वो करंट अकाउंट में आएगा, जैसे इनकम में यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ रही है? इसको लिंक समझ में आ रहा है आपके? Yes, sir. Yes, sir. Got it. हाँ, ये देखिए, याद रखिए, इनकम, ये देखें, ये प्रॉफिट है ना, और ये देखें इनकम फ्रॉम इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जो इसका मतलब ये फाइनेंशियल अकाउंट और करंट अकाउंट अपोजिट होंगे, है ना? अगर Mhm. इसी तरह कि अगर देखें, अब देखें एक और आ गई, अगर कोई किसी ने हमारे मुल्क में अगर लगाया है, तो फाइनेंशियल अकाउंट में तो वो पॉजिटिव आइटम होगा वो, क्योंकि पैसा आ रहा है, हमारे मुल्क में फैक्ट्री लगा रहा है, काम कर रहा है। लेकिन जो यहाँ फैक्ट्री लगा के जो दूसरी कंट्री वाले प्रॉफिट अपने मुल्क भेजेंगे, वो हमारे मुल्क के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और डेबिट आइटम हो जाएगा, लेकिन वो कहाँ पर करंट अकाउंट में आएगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. वेरी गुड, चलो शाबाश। एक तो हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? यानी कि हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने वहां पे फैक्ट्री खोली और वो खोली, या किसी और ने हमारे मुल्क में खोला। पोर्टफोलियो जब भी जिक्र आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने शेयर्स वगैरह परचेज किए, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड शेयर्स, ठीक है? सिंपल हमने क्या किया, हमने उसमें हमने कंपनी को परचेज नहीं किया, बल्कि सिर्फ इसके शेयर ले लिए। तो अगर हमने किसी दूसरे मुल्क के शेयर परचेज किए, मिसाल के तौर पर अगर हमने यूके किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, तो हम ज़ाहिर है शेयर लेने का मतलब पैसा हमने वहां लगाया है, शेयर परचेज किया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हमारा डेबिट आइटम होकर पैसा जा रहा है, लेकिन इस पे जो डिविडेंड मिलेगा वो हमारा पॉजिटिव आइटम होगा, और हमारे पास किस में आएगा वो आएगा क्रेडिट आइटम में, और कहाँ पर आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। ये बात क्लियर है? जिस तरह ये एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही होता है। Yes, sir. वेरी गुड, बल्कि समझ में आ रहा है आपके ना? जी सर। चलो शाबाश। अच्छा, एक और आइटम इसके अंदर होता है अदर, इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब एक आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने फैक्ट्रियां खोल ली, या हमारे मुल्क में किसी और ने खोल ली, ये बात हो गई। पोर्टफोलियो का मतलब आपने जो है ना फैक्ट्री वगैरह के लिए आपने सिर्फ शेयर परचेज कर लिया, थोड़े से शेयर का कॉन्सेप्ट तो मेरा ख्याल होगा आपका ना। इसमें सिर्फ आपको शेयर परचेज के परसेंटेज है, उस पर आपको मतलब वो जो डिविडेंड अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें आपको, आपने बेसिकली किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने खुद कंपनी अपनी पूरी खोल ली, इसका मतलब बेसिकली ये होता है। तीसरा आइटम है, इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। वो कैसे होती है? शॉर्ट टर्म मूवमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल इंक्लूडिंग बैंक लोन एंड इंटर गवर्नमेंट लोन, ये लोन वगैरह। अदर इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि आपने ना आपने फैक्ट्री खोली है, ना आपने शेयर परचेज किए हैं, बल्कि आपने क्या किया कि आपने किसी मुल्क में पैसे जो है ना आपने पैसा आपने वहां पे पैसा जो है ना वो किसी बैंक में पैसा रखवा दिया आपने। अगर आपने किसी मुल्क में पैसा रखवाया है इस कंट्री का, तो वो तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट में तो डेबिट आइटम हुआ, क्योंकि पैसा जा रहा है।
उसके बाद उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारे मुल्क में क्या होगा, क्रेडिट आइटम होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर किसी ने हमारे मुल्क हमारे बैंक में पैसा रखवाया हुआ है, हमारी कंट्री के बैंक में पैसा रखवाया है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव आइटम होगा। लेकिन जब वो अपने मुल्क में वापस इंटरेस्ट भेजेंगे, जब देना हमारे मुल्क के बैंक वाले जब इंटरेस्ट पे करेंगे तब हमारे लिए क्या होगा, लेकिन वो आएगा करंट अकाउंट में। वो कहाँ पर आएगा, करंट अकाउंट में आएगा, और वो हमारे लिए डेबिट आइटम होगा और नेगेटिव होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से हम एक ही तरह की चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा ख्याल समझ में आ जाना चाहिए आपको, नहीं है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो एक और और चौथे क्या चीज होती है, वो रिजर्व एसेट होता है। दीज आर मेड अप ऑफ अ गवर्नमेंट होल्डिंग ऑफ गोल्ड। अच्छा, ये रिजर्व एसेट मतलब जैसे आपको पता है कि आपको कंपनी का उसको ना गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, वो रखने का होल्डिंग गोल्ड है। पहले सिर्फ गोल्ड होता था कि उसके जितनी गोल्ड है उसके मुताबिक हम नोट छाप सकते थे, अपनी मर्जी से नहीं छाप सकते थे। लेकिन अब जो है वो गोल्ड के अलावा हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी रखना पड़ता है हमें। ठीक है, और जनरली ये फॉरेन एक्सचेंज में ज्यादातर कौन सा होता है, डॉलर ही होता है। ठीक है, उसके अलावा एक और आइटम है, एक और आइटम इसके अंदर है, वो है ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट। ये भी एक चीज होती है। ये क्या होता है, ये समझ लेंगे। स्पेशल ड्राइंग राइट्स चेंज इन द कंट्री रिजर्व पोजीशन इन द IMF। अच्छा, ये हमारे पास हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास जो है ना, एक तो हमारे पास होता है, अपने पास रखते हैं हम सारे फॉरेन एक्सचेंज। फिर IMF जो है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वहां पर भी हमें कुछ रखना पड़ता है, अपने सारे अपने बताना पड़ता है। रिजर्व आर कैप्ड इन द सेटलमेंट। ये रिजर्व क्यों रखे जाते हैं, देखें ये क्यों रखे जाते हैं। रिजर्व आर कैप्ड टू सेटल इंटरनेशनल डेट, टू इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये भी होता है कि मिसाल के तौर पर जो हमें पेमेंट करनी है वो हमारे IMF के पास हमारे बैंक एक सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो रखा हमारे पास। तो अगर हमें पेमेंट करनी है तो फिजिकल पेमेंट करने के बजाय वो क्या होता है, वहां से हम डेबिट करते हैं, वहां से क्रेडिट कर देते हैं। मतलब हम किसी भी अकाउंट में अगर पेमेंट करनी होती है तो उसमें हम पेमेंट कर देते हैं, और अगर हमें पैसा रिसीव करना होता है तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है या कंफ्यूजन हो रही है? ठीक है, एडिशन टू द रिजर्व, देखें आप अगर आपके एडिशन होगा ना रिजर्व, तो वो डेबिट आइटम हो जाएगा। ठीक है, एडिशन टू द रिजर्व आर शोन एज डेबिट आइटम। ठीक है, व्हाइल रिडक्शन इन द रिजर्व आर शोन इन द क्रेडिट आइटम। अच्छा, दिस इज बिकॉज का वजह क्या है, फॉर इंस्टेंस द सेंट्रल बैंक सेल सम ऑफ इट्स फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी सेल करेगी, इट विल गेन इट्स ओन करेंसी इन एक्सचेंज, सो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करेंसी इनटू द कंट्री। समझ में आई? ये डेबिट आइटम क्यों होगा, क्योंकि दिस इज बिकॉज, फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें कि सेंट्रल बैंक ने सेल किया सम ऑफ द फॉरेन करेंसी। ठीक है, जब हम सेल करेंसी, अब रिडक्शन देखें ना, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, कम हो गई। ठीक है ना, कम होने का क्या मतलब हुआ, कम होने का मतलब हुआ कि हमने फॉरेन एक्सचेंज सेल कर दिया। फॉरेन एक्सचेंज सेल करेंगे तो ये बताइए हमारे मुल्क में पैसा आएगा या जाएगा? समझ रहे? ये बात समझ में आ रही है या नहीं, दोबारा बताऊं, आप दोनों बताएं। सर एक बार फिर बता। देखें, ये आपके पास रिजर्व है, रिजर्व पैसा आपके पास है। अगर आपके पास बढ़ेंगे, एडिशन टू द रिजर्व डेबिट आइटम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बेसिकली हुआ कि अगर आपके पास रिजर्व बढ़ रहे हैं, रिजर्व बढ़ने का मतलब क्या हुआ, यानी गोल्ड है या फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब ना पैसे दे के हम लेंगे ना, वो गोल्ड लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली नेगेटिव आइटम है ना, हमारी करेंसी तो कम हो रही है। अगर दूसरी मुल्क की करेंसी हम ले रहे हैं तो अपनी मुल्क की करेंसी हमें देनी पड़ेगी ना, इस वजह से डेबिट आइटम होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह अच्छा, अगर हमारे रिजर्व में कमी आ रही है, रिजर्व कम होने का मतलब है डेबिट आइटम। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारे रिजर्व कम होने का मतलब क्या हुआ, कि हम जो है अपनी करेंसी जो है ना दे रहे हैं दूसरों को। उसका मतलब क्या हुआ कि हमारी करेंसी हमें हमें मिल रही है। मतलब अगर डॉलर हम बेच रहे हैं, ये गोल्ड बेच रहे हैं, तो वो तो रिजर्व तो हमारे कम हो जाएंगे ना, लेकिन हमारी जो करेंसी है उसमें क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ये बात क्लियर है? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी वही दी हुई है। इफ अ सेंट्रल बैंक सेल सम ऑफ इट्स फॉरेन करेंसी, इट विल गेन इट्स ओन करेंसी इन एक्सचेंज, सो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करेंसी इनटू द कंट्री। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ये बात क्लियर, तीन आइटम बहुत क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा एक और आइटम यहाँ पर होता है, वो होता है
नेट ओमिशन एंड एरर, ये क्या चीज होती है? ये वो होती है बहुत से आइटम जो हम रिकॉर्ड में आने से रह जाते हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट एज अ होल मस्ट ऑलवेज बैलेंस, ठीक है। This is because any credit item has to be matched by a corresponding debit item. For example, ये समझ लें। For example, if a country sale exports, the export will be recorded in the credit item. बिल्कुल ठीक है। To purchase the export foreign would have to be obtained currency. उसमें currency भी आएगा, import item होने चाहिए। ठीक है। Purchase the export foreign would have to be obtained the currency of the country they are importing from. अच्छा, दे मे डू दिस बाय फॉर इंस्टेंस बोरोइंग फ्रॉम द कंट्रीज बैंक। ये सारे आपस में कहीं ना कहीं लिंक होता है इनका, ठीक है ना। इसमें जैसे हम जो सेल कर रहे हैं, सेल करने के लिए करेंसी आ रही है, वो भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, फिर बैंक में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। डेबिट आइटम आ रहा है, तो डेबिट क्रेडिट सारा जो ना, बेसिकली हर जगह डेबिट क्रेडिट कहीं ना कहीं सब मिला के टोटल बैलेंस होना चाहिए। अब डेफिसिट का क्या मतलब हुआ? A deficit on the current account of the balance of payment should match with the surplus of equal to the financial account. ये क्या मतलब हुआ? डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब, डेफिसिट का मतलब हुआ कि आपके पास, करंट डेफिसिट का मतलब हुआ कि आपके पास एक्सपोर्ट आपने ज्यादा किया और इम्पोर्ट कम किया, यानी पैसा बाहर ज्यादा गया, ये कुछ तरह समझ लें, ठीक है। और आया कम है, लेकिन शुड पेमेंट शुड बी मैच बाय सरप्लस ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ द कैपिटल एंड करंट अकाउंट। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे अगर कुछ अगर पॉजिटिव हो रहा है, वहां नेगेटिव हो रहा है, ये सब इक्वल होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? Yes, sir, आ रही है। वेरी गुड। क्योंकि देखिए ना, ये जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, सब एक दूसरे, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव है, उसको बेसिकली बैलेंस होना चाहिए। इन प्रैक्टिस हाउएवर, लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है हाउएवर, अच्छा, विद सो मेनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व, इट इज डिफिकल्ट टू कीप द एक्यूरेट रिकॉर्ड, ठीक है ना। बहुत डिफिकल्ट होता है एक्यूरेट रिकॉर्ड करना। इस वजह से some mistake are likely to be made and some transaction may not be included, ये मैंने आपसे कहा था ना। अच्छा, to compensate of this, for this a net error and omission figure sometimes called the balancing figure, ठीक है, it is included, ये जरूर किया करता है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत से आइटम जो कि करंट अकाउंट में रह गया, फाइनेंशियल अकाउंट में रह गया, कैपिटल अकाउंट में रह गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या होते हैं, हमें कुछ बैलेंसिंग फिगर डालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, if the current account plus the capital account, financial account add up to the minus 200 million, अगर ये आ गया, this means 200,000 million more must have come into the country than was recorded, जो रिकॉर्ड से ज्यादा आया हुआ है, इसका मतलब डिफरेंस जितना आ रहा है। In this case, the net operating American figure plus 200,000 would be added by including the net error and omission figure. It means that the current account, capital account, financial account, and net error and omission equal to 0. यही मतलब हुआ ना इसका? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? It means that the current account, capital account, financial account, and net omission or ever and omission equal to 0. इसका मतलब क्या? इसका मतलब कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव से मिला के सबको प्लस माइनस जब करेंगे तो जो फिगर क्या आएगा, वो क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। तो ये बात किसी समझ में नहीं आई, मुझे बता दें। सर थोड़ी बहुत क्लियर हुई है, बस आई वांट टू रीड इट, अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगी दोबारा। बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं आपको रफली बता देता हूँ कि इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि आपके पास जो ना, ये आपके पास जो आइटम यहाँ पे, ये आपके, मैंने आपको बताया, यहाँ जो अगर जो पॉजिटिव हो रहे हैं, वहाँ पे नेगेटिव, यानी करंट अकाउंट में नेगेटिव आपस में, लेकिन टोटल सब जो और ओमिशन को भी इंक्लूड कर लेंगे ना, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। वो फिर पढ़ लीजिएगा, फिर प्रॉब्लम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और बात है कि ओवर टाइम मोर एंड बेटर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन लाइकली टू बिकम अवेलेबल, तो साइज ऑफ द एरर ऑमिशन कम होते जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जिस एडवांस कंट्रीज में एरर ओमिशन बहुत कम होता है। पाकिस्तान में बहुत सी ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो कि रिकॉर्ड में नहीं होती, ठीक है। तो वहां पर आप ज्यादातर जो है ना, आपने जो दूसरी कंट्रीज में आपको कैश बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर जो है ना बैंक के थ्रू होता है, तो वो सारा रिकॉर्ड में आ रहा होता है, ठीक है जी। क्लियर हो गई यहाँ तक? उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है ना। डिसइक्विलिब्रियम मतलब दायरा उनका इक्वल ना होना, ठीक है ना। उसके कॉजेज आप पढ़ लीजिएगा इसके अंदर, कॉजेज के करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है, ठीक है ना। ग्रोइंग डोमेस्टिक इकोनॉमी, ये अगर आपकी बहुत ज्यादा है, ठीक है,
तो जाहिर है आपके इंपोर्ट ज़्यादा होगी और इंपोर्ट चीज़ ज़्यादा परचेस कर रहे हैं आप ताकि ग्रो करने के लिए, और एक्सपोर्ट कम हो रहा है आपका, ठीक है ना। इसमें ये पूरा पढ़ लीजिएगा इसके अंदर। डिक्लाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेडिंग पार्टनर, ये भी होता है। इसका क्या मतलब हुआ, ट्रेडिंग पार्ट जिससे आप परचेस सेल कर रहे हैं वो उधर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, तो जाहिर है जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी तो आप अपनी एक्सपोर्ट आप उनको भेज ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास इनकम कम होगी, समझ रहे हैं। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी होती है हमारे पास। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम का मतलब होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी जो हमारा वो होता है ना, उसमें चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो रही थी, किसी में ज्यादा हो रही होती है, आप नहीं कर पाते, ठीक है। मेरा ख्याल है डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरी बात समझ आ रही है, ये एक एक चीज पढ़ाऊँ आपको, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो, लेकिन आप लोग का टाइम असल में कंज्यूम होगा यहाँ पे, तो इसमें अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो जी बोले। सर एक दफा रीड आउट कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर नेक्स्ट क्लास में जी डिस्कस वो करेंगे। आसानी हो जाएगी, आपको समझने में आसानी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है वलीद, आप भी इससे एग्री करते हैं ना, मसला तो नहीं है ना? जी जी सर। ठीक है। अच्छा, ये हमने बात की करंट कॉजेज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट की, कॉजेज क्या होते हैं ये सब, ठीक है ना। कि फाइनेंशियल अकाउंट की डेफिसिट भी क्या होता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट का डेफिसिट क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है आप देखें ना, डेफिनेशन हम इंशाल्लाह एक्सचेंज रेट इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ लेंगे पूरा हम लोग, ठीक है। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होता है ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। करंट अकाउंट के डेफिसिट और करंट अकाउंट के सरप्लस के कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, उसको उसकी वजह से अगर 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 आपके पास करंट अकाउंट, अगर आपके पास जो है वो अगर डेफिसिट होगा तो उसके क्या इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी के ऊपर, और करंट अकाउंट का अगर सरप्लस होगा तो उसके इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा। और ये हमारे पास ये ना, ये देखें तस्वीर जो बनी है पाकिस्तान की है और मेरा ख्याल है कराची की है, ठीक है जी। तो अब हम एक अगला टॉपिक हमारा एक्सचेंज रेट है, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी इसमें छेड़ना नहीं चाह रहा, वरना आपको वो ना हो जाए। लेकिन आप जरूर ये जरूर कह सकता हूँ आपको कि आप लोग जितना मैंने आपसे पढ़ने को ये बोला ये, और प्लस ये फॉर्म ये जो सारा एक्सचेंज रेट है ना, ये पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा डिटेल के साथ, ताकि आपको जब पढ़ाऊँ तो आपके समझ में आ जाए, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह यस सर। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम ये पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सचेंज रेट मेरा ख्याल है हमारे पास हम सब ट्रेड ये पढ़ लेंगे ना, पर फिर इंटरनेशनल ट्रेड होगा थोड़ा सा, ठीक है। ओके सर। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए फिलहाल। नहीं सर। नहीं चले सर अभी कोई नहीं। चले ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क जो है वो जितना मैंने आपको पढ़ाया वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा उस इन्फ्लेशन के देख लीजिएगा, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा पढ़ लीजिएगा, उसमें जो चीज़ है कॉन्सिक्वेंस होते हैं पूरी एक एक चीज डिटेल से पढ़ लीजिएगा, और अगर प्रॉब्लम हो तो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा आपका काम किया है कि ये आपका पूरा एक्सचेंज पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक्सचेंज पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद से जब मैं लेकिन पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो उसमें जब अगर अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, और हो सकता है जो अगर प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। ठीक है सर। चलिए फिर ओके हम, सर। ठीक है, हम क्लास पे एंड करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।